Yes, quickly everyone. If my voice is clear, everyone raise your hand. Okay, good. So how are you all? कैसे हैं आप सब? Good morning and welcome to today's class and I hope you all are good and well at your places. As you all know that we have finished with our exams, है ना? Exams खत्म हो गए हमारे? Okay. So how were the exams? As we all know, exams are always nice and so are our marks. Okay. So you have studied very hard, completed your work in such a difficult time. You performed nicely, you gave your exams, you got your marks from all your teachers, right? So and also enjoyed a short period of holidays, है ना? थोड़ी सी छुट्टियां भी हमने enjoy कर ली है, right? Chalo, now come on. So now what we have to do, we are back to our pavilion and with more efforts and more energy, what we have to do, we have to finish with our new syllabus, है ना? हमें अपना नया सिलेबस स्टार्ट करना है और उसको बहुत ही अच्छे से हमें बहुत ही अच्छे से समझ के विद गुड अंडरस्टैंडिंग हमें उसे फिनिश भी करना है. It's so good to talk to you all, to teach you all again. And as you know that Anjum Bhatti ma'am teaches you, but she's out for some work. So today I'll be taking her class and I'll be taking the topic of a grammar. That is a common topic which we all can take. So the topic that today we are going to take is tenses. Okay, grammar topic है, so basically हम अच्छे से कर सकते हैं. Firstly, now what happens student when we talk of the language English? Okay, जब हम English की बात करते हैं तो क्या होता है? We nowadays we are in so much habit of a chat language. हम chatting करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं? We make up short forms of all the lengthy words. हम हर बड़े वर्ड को शॉर्ट में करके लिखने लग गए हैं. हमारी ग्रामर बहुत पुअर होती जा रही है. हम ऐसा सोच रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ दिस चैटिंग हमारी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो रही है, हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से लिखनी आ रही है. We can easily communicate in English, but we should understand the fact that is कि fact क्या है, that we all are going very slight backward. We all are creating much and much errors in writing as well as understanding the language English. हम उसमें बहुत से errors create करने लगे हैं. And because of that errors क्या होता है, हम कुछ भी ऐसी गलती करते हैं which is invisible. बिकॉज हम जिस तरह की लैंग्वेज में अभी टच में है ना, हमें बहुत सी चीजें होती है जो हमें ऐसा लगता है कि ये तो गलत है नहीं, क्यों गलत हो गया. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एक इस तरीके का एरर होता है दैट व्हेन योर टीचर मार्क दैट एरर, यू ऑलवेज से कि नहीं ये कोई गलती थोड़ी है, मैम ने फालतू में मार्क्स काट दिए, बट वो एक्चुअल में फालतू नहीं होता. दैट इज अ एरर मेड बाय यू एंड दैट इज अ स्लाइट ग्रामेटिकल एरर. So in order to make your English very clear, that pin to point without any corrections, you have to have a thorough knowledge of the tenses. अगर आपको tenses की अच्छी knowledge है, you can write the English well as you can read and as well as you can understand the English and speak very well. Okay, so tenses जो होते हैं ना, they are the base foundations of any लैंग्वेज वी कैन से. जब हिंदी में हम बात करते हैं तो काल जिसको हम बोलते हैं वो टेंसेस ही होते हैं, वो बेस फाउंडेशन होती है. व्हेन वी टॉक ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश, तो हमारे जो टेंसेस होते हैं सेम वही काल का इंग्लिश फॉर्म होता है, टेंसेस. ओके, सो जब हम बात करते हैं टेंसेस की, तो टेंसेस क्या होते हैं जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं. ओके, वो काल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, है ना. जो बीत चुका है वो क्या है? जो बीत चुका है वो क्या होता है? वो भूतकाल होता है. जो चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल. और जो आने वाला है वो क्या है? भविष्य काल. So when we talk of the language English, we say that whatever has gone is the past, whatever is going on is present, and whatever will come is going to come is future tense. So the thing that has already done is past, which is being done right now is present, and which will be done in the coming times is future. Okay, so we have 3 kind of tenses with us.
So the topic for today is tenses, right? We have, when we talk of tenses, we have 3 tenses. कितने tenses होते हैं? 3. And what are they? Present, past and future. Okay? Present, past and future. Tenses की कितने forms होती हैं? 3. That is present, past and future. Present as I told you, जो चल रहा है. Past as I told you, जो चले गया. And future as I told you, that is still going to come, जो आने वाले समय में आएगा. Okay? जब हम इनकी बात करते हैं ना, तो इनके क्या, ये तो इनके टाइप्स हो गए. अब हर टेंस के कुछ फॉर्म्स होती है. ठीक है? क्या होती हैं? फॉर्म्स होती हैं. कितनी होती है? 1, 2, 3 and 4 फॉर्म्स होती है. फर्स्ट इज सिंपल. ओके, इसे एक और नाम से भी कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट. ओके, देन आता है कंटिन्यूअस. ओके, देन आता है परफेक्ट, देन आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. First is simple, that is also known as indefinite tense. Second is continuous, third is perfect, and fourth is perfect continuous. So when we talk of the tenses, there are 3 kinds and there are 4 forms, and each kind has these 4 forms. Like when we talk of present tense, we will talk about present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. When we talk of past, it is past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. And when we talk of future, future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Okay, so ये जो है इतने. So we can say that we have 3 kinds into we have 4 forms of each, that gives us 12, right? कितना आता है? 12. Now 3 into 4 is equals to 12. So total we can say we have to understand 12 forms of tenses. Correct? 12 forms of tenses. हमें 12 forms of tenses करना होगा. Present, past, future और तीनों की 4 फॉर्म्स करनी है. दैट इज इक्वल्स टू 12 फॉर्म्स. नाउ व्हाट हैपेंस जब हम इन 12 फॉर्म्स की बात करते हैं ना, व्हाट हैपेंस कि जब भी हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, व्हाट हैपेंस, वी हैव फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. हर स्वयं के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, व्हाटएवर फिगर इज विद अस, हम वो फिगर्स उसके अंदर पुट करते हैं, और जो नहीं होता, जो मिसिंग होता है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर्स हम मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करते हैं. Now what happens here कि यहाँ पे भी whatever is given to you in a sentence, आपको fill in the blank दिया गया, fill in the correct form और correct tense. तो आपको जो given sentence होता है उसमें क्या है, आप उसको उसका structure लिखोगे, and whatever is missing, तो आप उसमें क्या करोगे, जो भी चीजें आपके पास में मिसिंग होगी, आप बाकी जो given है उनकी हेल्प से आप उस मिसिंग वाले को लिख लोगे. ओके, करेक्ट. Now we will be giving you the 12 structures. हम आपको क्या देंगे, 12 structures देंगे, and you have to know those 12 structures by heart. आपको वो 12 structures बहुत अच्छे से आने चाहिए. अगर वो 12 structures आपको आ गए तो आप अपने tenses को बहुत अच्छे से work कर सकते हो. Okay, correct, fine, understand? ओके, सो आपको सारे जितने भी मैं आपको structures दूंगी ना, you have to learn those structures nicely in order to do your tenses very well. Tenses को बहुत अच्छे से करने के लिए आप पूरे 12 structures करोगे. You all take out your notebook, take out a pen, as soon as write down the structure. जब मैं structure लिखूंगी तो you will be noting down the structures along with that. We'll be taking up a one sentence and उसी के हम पूरे जो है सारे के सारे हम उसी के forms जो है आगे continue करेंगे. Correct?
One by one, we'll be taking up tenses. Firstly, we'll take the present tense. Okay, जो first tense है हमारा, that is present tense. Correct? हम present tense को लेंगे. Present tense में जो हम first form जो हम ले रहे हैं वो कौन सी है? Present simple, या फिर इसे हम बोलते हैं, ओके गुड, चलो नाउ पे अटेंशन. ओके, सो द सेंटेंस इज आई राइट अ लेटर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस. सो व्हेन वी से आई इज अ सब्जेक्ट, राइट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस लेटर इज ऑब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्ट फॉर्म of verb, that is the main highlight of this tense. Now what happened, जब भी आप simple sentence की बात करते हो ना, आपको क्या यूज करना है? आपको first form of verb यूज करनी है. जब हम verb की बात करते हैं ना, हम कोई भी verb लेते हैं ना, उसके 3 forms होते हैं. अच्छा, जब हमने suppose हमने verb लिया यहाँ पे write, write हमारी verb है, write का first form होता है write. okay, write की second form होती है wrote, and write की third form होती है written. okay, correct, understand? first form, second form and third form, write, wrote and written. now हमें यहाँ पे क्या लेना है? first form of the verb. तो first form of the verb क्या है? write. ठीक है, तो subject plus first form of verb plus object. तो कोई भी आपके पास में verb होगी, अगर आप present simple की बात कर रहे हो तो आप उसमें first form of verb को ही लोगे. So what is the structure of this first form? That is simple present tense, subject plus first form of verb plus object. I repeat it, subject plus first form of verb plus object. Okay, understand? Now we'll move up to the second form of this present tense. Keep on noting it down, everyone. उसको लिखते रहे आप लोग. once एक बार आप उसको अपने हाथ से लिख लेंगे ना, साथ ही साथ the things will be fixed in your mind. आपके दिमाग में वो चीजें अच्छे से एकदम रहेंगी. ठीक है? So now when we are talking of the second form क्या है? present continuous tense. ठीक है? present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस मीन्स चलते जाना, जो चीज कंटिन्यूअसली आगे तक चलती जा रही है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, बहुत ही बेसिक सी एक चीज लेते हैं. जब आप कोई चीज को कंटिन्यूएशन में कर रहे हो, व्हेन आई से, अगर मैं आपको बोलूं आप खाना खा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? व्हाट विल यू से? ईटिंग. दौड़ रहे हो, व्हाट यू विल से? रनिंग. ओके, सो रहे हो, व्हाट यू विल से? स्लीपिंग. और पढ़ रहे हो तो स्टडिंग. रीड कर रहे हो तो रीडिंग. आपने सब में एक चीज कॉमन देखी, क्या आ रही है? द थिंग दैट इज इन कॉमन इज ING. ओके, क्या आ रहा है? ING. ये जो बॉक्स में चीजें होती है ना, इसको बहुत स्पेसिफिकली नोटिस किया करो. ठीक है, तो जहां पे भी वर्ब में ING आता है ना, ING डिनोट्स अ कंटिन्यूअस वर्ब. ING आपका कंटिन्यूअस वर्ब होता है. अब आपको देखना है कि ING आप किस में लगाओगे. आप देखो, राइट में ING लगाओ, क्या वर्ड बन रहा है? राइटिंग. रोट में ING लगाओ, क्या वर्ड बन रहा है? रोटिंग. रिटन में ING लगाओ, क्या वर्ड बन रहा है? रिटनिंग. सो आपका करेक्ट वर्ड क्या होना चाहिए? राइटिंग, रोटिंग या रिटनिंग? राइटिंग सही है? यस. रोटिंग सही है? नो. रिटनिंग सही है? नो. सो हम क्या लेंगे? राइटिंग. तो राइटिंग किससे बना है? फर्स्ट फॉर्म of verb plus ING. So this gives us a continuous tense. ठीक है, continuous tense के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, first form of verb plus ING. ये आपके जो है ना, we can say these are your some few important things जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ये स्टार मार्क्ड एलिमेंट्स है जिनको आप ऐसे ही बॉक्सेस बना बना के रख सकते हो. ओके, सो कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, वो आपका कंटिन्यूस. तो नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इट. हम उसका एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या है? आई एम राइटिंग
आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके, सो आई क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, करेक्ट. ये इसका स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ कम्स अनदर बॉक्स थिंग. ठीक है, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. ओके, जिसको हमने ऐसे HV भी बोला है. अब हेल्पिंग वर्ब का क्या है? हमारे पास में कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना. ये तीनों के लिए आप देखोगे, जब आप बात करते हो प्रेजेंट की, आप बात करते हो पास्ट की, आप बात करते हो फ्यूचर की. ठीक है, तो जो प्रेजेंट होता है हमारा, उसके अंदर हम इज यूज करते हैं, एम यूज करते हैं या फिर आर यूज करते हैं. पास्ट जो होता है उसके अंदर हम वॉज यूज करते हैं या फिर वर यूज करते हैं. फ्यूचर के अंदर हम बी यूज करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट में हम इज यूज करते हैं, एम करते हैं, आर करते हैं. पास्ट में हम वॉज करते हैं, वर करते हैं, एंड फ्यूचर में हम बी यूज करते हैं. हम जब यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लेना है? या तो हमें इज लेना है, या हमें एम लेना है, या हमें आर लेना है. अब ये तीन हम किस तरीके से लेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट होता है, अगर ये हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लेंगे? इज लेंगे. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो हम क्या लेंगे? आर लेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे क्या है? आई है ना, तो इसके साथ में हमने क्या लिया? एम ले लिया. ओके, करेक्ट. तो ये इसके हमारे जो चीजें हैं, हमें जो मेन इसके साथ में लेनी होती है वो है. So what we are going to take here, that is subject is I, so helping verb we are going to take is am, because it's compulsory that you always take am with the I as a subject. Whenever you have a subject I, it is compulsory to take the helping verb that is am. In which tense? In present tense. We are not talking of present, we are talking of present, we are not talking of past and future. So we are going to take am. Along with that, first form of verb plus ing, and along with that we are going to take the object. उसके साथ में हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे. ओके, सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये हो गया आपका. Now we'll be taking, I hope you all are noting it down. Correct, and I hope it is well clear. मैं बहुत ही basic से आपको उसके बहुत ही we can say a very short thing. Some might be knowing it already. किसी को ये सब चीजें आती होंगी, but still we have to do it again. Okay? So now we'll be taking up the third thing. Third is what? Third is present perfect. That is present perfect tense. Now comes, when we talk of perfect, means that is perfect. आपको पता है ना एकदम अच्छे से. The work is perfectly finished in the present when we are talking about it. तो वर्क तो फिनिश हो गया, बट इन द प्रेजेंट. सो वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है यहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म इज इटसेल्फ, जो कंप्लीटली एक परफेक्ट फॉर्म होती है. अब थर्ड फॉर्म चाहे आपकी प्रेजेंट की हो, चाहे आप परफेक्ट टेंस, चाहे आपका प्रेजेंट का हो, चाहे आपका फ्यूचर का हो, चाहे आपका पास्ट का हो, अगर आप उसका परफेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेनी होती है उसके साथ. जैसे कंटिन्यूअस कोई भी हो, आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेना है ना, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है. उसी तरीके से अगर आप परफेक्ट की बात करते हो, तो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट के साथ आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? थर्ड फॉर्म. ये भी यहाँ पे एक बार आपको मैं लिख के देती हूँ इस बॉक्स के अंदर. परफेक्ट के साथ में आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब.
correct? Third form of verb. Now let me write down the example. I have written a letter. I have written a letter. अब इसमें आपको एक नया एलिमेंट दिख रहा है, have, है ना? वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आ गई. Firstly, let me write down the structure, that is subject plus either we have to take has or we have to take have, plus then we have to take the third form of verb plus object. Okay, ये है. अब यहाँ पे जो न्यू थिंग है is have. Now what we have to do? Time for another box coming. Now this won't be visible to you, तो मैं इसको यहीं पे ही शॉर्ट में लिखती हूँ. अब क्या होता है, हमारे पास तीन टेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हैज, हैव, हैड भी हमारे पास तीन होते हैं, करेक्ट? तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं ना, प्रेजेंट में हमें क्या लेना होता है? आइदर वी हैव टू टेक हैज और वी हैव टू टेक हैव. ओके, या तो हम हैज लेंगे या हैव लेंगे. ये दोनों चीजें आपको परफेक्ट टेंस के लिए ध्यान देना है. परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज, हैव और हैड में एक सी चीज आएगी, लेकिन जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हो तो आइदर यू विल टेक हैव और यू विल टेक हैज. अब हैज और हैव कैसे आता है? अगर आपके सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आप उसके साथ में हैज लोगे, प्लूरल है, ठीक है, तो आप उसके साथ में हैव लोगे. एंड समटाइम्स क्या होता है, अगर आई आ जाता है, यू आ जाता है, इनके साथ में भी आप क्या लेते हो? हैव लेते हो. आई एंड यू, इनके साथ में भी आप क्या लोगे? हैव लोगे. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ में हमें क्या लेना है? आई के साथ में हमें हैव लेना है. ओके, so we can say subject is I, so we took have. helping verb हमने ले ली have. ये क्या है? ये हमारी helping verb है यहाँ पे, ठीक है. फिर verb की थर्ड फॉर्म लेनी है बिकॉज परफेक्ट है, एंड हमें साथ में ऑब्जेक्ट लेना है. तो I have written a letter. सब तो स्ट्रक्चर गोज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Subject plus has, have plus third form of verb plus object. This is the structure of, we can say, present perfect tense. Now we move on to the last form of present, that is present perfect continuous tense. Okay, present perfect continuous tense. What is it? It is present perfect continuous tense. It is quite long. इसमें perfect भी है, इसमें continuous भी और present तो ये है. Now we can say हमें perfect हमें पता है, continuous हमें पता है, तो फिर क्यों ये एक नया tense हमारे लिए बना दिया है? But ये मान के चलो एक एलिमेंट आपको perfect का लेना पड़ेगा. One element you have to take from continuous. But since being a new form of a tense, तो इसमें कुछ ना कुछ इसका new addition तो होगा. परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि वर्क अभी तक बहुत ही परफेक्टली होता आया है, हो रहा है, बट आगे भी होता रहेगा. प्रेजेंट में वर्क परफेक्टली चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो इसको बोला गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ आई विल राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ इट. आई हैव been writing a letter since morning. Okay,
आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब इसके अंदर ना दो चीजें बिल्कुल न्यू आ रही हैं, आपको उन पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। व्हाट आर दोज न्यू थिंग्स, वो मैं आपको यहाँ के बॉक्स में बताऊंगी। ओके, सो सबसे पहले विल राइट डाउन द स्ट्रक्चर। आई इज अ सब्जेक्ट प्लस आइदर यू हैव टू टेक हैव और यू हैव टू टेक हैज, या तो आपको हैव लेना है या आपको हैज लेना है। देन अनदर न्यू थिंग वी कैन सी इज एडिशन बीन plus what you have to do, you have to make a continuous, that is first form plus ing, plus you have to take a object plus another new thing, that is since, along with that एक और choice होती है, either you can take for। ठीक है, आप since ले सकते हो या फिर आप for भी ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अब देखो इसमें जो दो नई चीजें आई, वन इज बीन। सो आपने परफेक्ट से क्या लिया, आपने परफेक्ट का क्या एलिमेंट उठाया, परफेक्ट का द एलिमेंट यू टुक इज हैज और हैव ले लिया आपने इसका परफेक्ट का। ठीक है, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे ना, आपने ये ले लिए। देन कम्स द कंटिन्यूस, फ्रॉम कंटिन्यूस यू टुक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नाउ आपने, बिकॉज वहां से फ्रॉम देयर यू हैव टेकन हैज एंड हैव, सो यू डिडंट टुक द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Otherwise, what content would you have taken from the continuous tense? So, what you have taken from continuous, continuous में से आपने उसकी verb form ले ली, that is first form plus ing, and from the perfect you took its has and have, that is helping verb. But being a new form of tense, तो हमने इसका जो special addition है, that is been. So, wherever you find been, जहां पे भी आपको been दिखाई देता है, B-E-E-N, so it is very clear in your mind कि जहां पे आपके पास में been आ रहा है, that is what tense are you talking of? You are talking of present perfect continuous tense. Okay, so यहाँ पे been आते ही आपका पूरा present perfect continuous tense start हो जाता है। So we can say subject plus has have में से आपने एक लिया, has have you have to take according to the thing that we have taken in the, कि singular है तो क्या लोगे, plural है तो क्या लोगे, उसी फॉर्म पे यू हैव टू टेक दैट बीइंग अ न्यू सेंटेंस, इसका आपको एडिशन लेना है, दैट इज बीन ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट इट कम्स कंटिन्यूअस, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लोगे। ऑब्जेक्ट आपको लेना है, अनदर न्यू थिंग कम्स, दैट इज सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर आ रहा है। नाउ उसका क्या सीन होता है सिंस एंड फॉर का, व्हाट वी डू इज, जब भी आप बात करते हो सिंस की, ठीक है, since is what, since is point of time, since is what, since is a point of time। since क्या होता है, since point of time होता है, and for क्या होता है, when we talk of for, for is period of time। ठीक है, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज कि अगर मैं किसी को बचपन से जानती हूँ, इट इज सिंपली अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो एक समय बिंदु है कि मैं इसको बचपन से जानती हूँ। सो इफ आई से दैट आई नो नेहा सिंस चाइल्डहुड, मैं नेहा को बचपन से जानती हूँ, व्हाट विल आई से, आई विल से मैं नेहा को बचपन से जानती हूँ, मतलब आई नो नेहा सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि मेरे पास फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। एंड व्हेन आई से कि मैं और नेहा 2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, so 2 घंटे मेरे पास क्या है, 2 hours is a fixed period of time, so what I'll say that Neha and me are going out for 2 hours, so what I use here, I use for over here। मैंने जहां पे where I have a point of time I use since, and where I have period of time I use for। so since is for point of time and for is for period of time। so according to our sentence, when I say I have been writing a letter since morning, तो सिंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि मैं सुबह से लेटर लिख रही हूँ, सुबह से मैं कब से लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, मुझे पता नहीं, कितनी देर से लिख रही हूँ, कितने घंटों से लिख रही हूँ, दैट इज स्टिल एन अननोन फैक्ट। तो एक बस पॉइंट ऑफ टाइम है, सो इट गोज सिंस ओवर हियर। अगर मैं बोलती कि मैं लेटर 2 घंटे से लिख रही हूँ, तो आई वुड हैव सेड फॉर 2 hours, कि 2 घंटे के लिए लिख रही हूँ, मैं लेटर से लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, समय का बिंदु होता है, वी यूज सिंस, एंड जब हमारे पास समय की अवधि होती है, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, सो वी यूज फॉर।
So over here, what is subject plus has have plus been plus first form plus ing plus object and then since and for, according to what we use since and for, according to the point of time and the period of time. So I hope this structure is quite clear to you. So I'll be revising it. The structure for the present perfect continuous tense, that is subject plus has have plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since and for. Once again, I'll repeat it. Subject plus has have plus been plus first form of verb plus ing plus object and plus since and for. So these were all, we can say these were the tenses that we did. And what tenses it were? These are the tenses that are, ये कौन से टेंसेस हैं जो हमने अभी लिए हैं? ये हमने प्रेजेंट की सारी फॉर्म्स ली हैं, ठीक है? सिंस या फिर आपको क्या लेना है? फॉर. Either you have to take since or you have to take the for. Okay, correct? हो गया? Fine. तो I hope you all understand it nicely. ये हो गया आपका present, and in tomorrow's class we'll be taking the future and the past. Hopefully the remaining two will be completing in tomorrow's class, and then we'll taking up an exercise of these tenses. I'll be bringing the exercise and we'll solve it over here. And also we'll be giving you the homework and the notes of tenses you will get. Okay, fine. And if there are any queries of anyone, just raise your hand.